We are coming to the concluding sermon on the book of Ecclesiastes, a series that we titled it Meaning and Purpose. हम लोग अपनी सबोपदेशक पुस्तक के श्रृंखला के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, जहां पर हम लोगों ने अध्ययन करा कि हमारे जीवन का मकसद और उद्देश्य क्या है. How many of you have been blessed through this series that we've been doing over the last 9 Sundays? आप में से कितने लोग आशीषित हुए पिछले 9 रविवारों से इस वचनों के द्वारा जो हमने सबोपदेशक की पुस्तक से सुना? If you missed any one of those teachings, I want to encourage you to go to our LifeBridge YouTube channel and make sure to listen to any missed session of this particular series. अगर आप में से किसी ने कोई भी संदेश किसी तरह से छूट गया आपका, तो हमारा YouTube चैनल जो लाइफ ब्रिज का है उसमें जाकर आप वहां से उन संदेशों को सुन सकते हैं. Maybe you want to go back and listen to some of those again and again, couple of times. शायद आप वो संदेश सुन चुके हैं, लेकिन आप दोबारा उसको सुनना चाहते हैं. And I can guarantee you that your life will be blessed and you will be edified and you will be changed. और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि आपका जीवन बदलेगा, परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन का कार्य करेगा. So today teaching number 10 on this particular series. We are wrapping up this series and we will be moving on to some exciting series in the coming months. और आज हमारा 10वां संदेश है सबोपदेशक की पुस्तक से, और ये हमारा अंतिम संदेश है इस पुस्तक से. इसके बाद हम आगे एक नई श्रृंखला को शुरू So करेंगे. turn with me to the book of Ecclesiastes chapter 12. इसलिए आइए मिलकर सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12वां अध्याय खोल लें. And the title of our study today is Everything Matters in the End. और आज हमारा शीर्षक संदेश का यह है कि अंत में सब कुछ महत्वपूर्ण है. We come to this phase where Solomon has run his course of life. हम उस पड़ाव पे आ चुके हैं जीवन के, जहां पर सुलेमान ने अपने जीवन की दौड़ अच्छे से पूरी कर ली है. Mama Yolanda, I think Solomon is probably your age when he was writing chapter 12. शायद मम्मा ओलांडा जो है वो उस उम्र की रही हैं जिस समय सुलेमान था. Maybe he was older because in those days people lived much longer. शायद सुलेमान उनसे भी ज्यादा उम्र का था, क्योंकि उस समय लोग ज्यादा आयु जीते थे. But Solomon had one advantage. लेकिन सुलेमान को एक लाभ था. He was a very rich man. वो बहुत ही धनी व्यक्ति था. So he could do all kinds of crazy things to explore the meaning and purpose of life on his own, at his own expense. क्योंकि वो धनवान था, इसलिए उसके पास हर प्रकार से वो संभवताएं थी कि वो अपने जीवन का पूर्ण रीति से आनंद उठा सके, जिसके द्वारा वो अपने जीवन में मकसद और उद्देश्य पा सके. How many of you wish you had lots and lots of money like Solomon that you can try all of that? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके पास बहुत सी धन संपत्ति होती ताकि आप ऐसी यात्रा जैसे सुलेमान ने करी अपने जीवन की आप कर पाते? But I think that would be so crazy, and maybe some of you or many of you or maybe including me, I don't know whether I would have survived that kind of an ordeal that Solomon went through. लेकिन पता नहीं, शायद हम में से सब या कुछ या मैं जो भी है, शायद हम में से पता नहीं कितने लोग उसमें जी पाते. Maybe I would have gone into depression. शायद मैं निराशा में चला जाता. Maybe I would have done something stupid. शायद मैंने कुछ मूर्खता का काम कर दिया But होता. today, thank God, we don't have to go through those experiences. The summary findings of everything that Solomon explored is in chapter 12. लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हमको उनमें से किसी से होकर नहीं गुजरना, क्योंकि सुलेमान ने हमारे लिए पहले से ही इन वचनों को दे दिया है. Years have passed since he began his search for meaning in life. सालों बीत चुके हैं, सदियां बीत गई हैं कि सुलेमान ने जो है जीवन का मकसद और उद्देश्य को जान लिया. Boiling everything down to these final few words, he's giving us some terminus advice, very crucial advice that's going to be important for each one of us. जीवन भर जितना भी गुजरा है उसमें से जो उद्देश्य और मकसद जीवन का है वो हमको बताना चाह रहा है. The whole point of chapter 12 is the whole point of the book of Ecclesiastes. जो बिंदु वो इस 12वें अध्याय में कहना चाह रहा है वो पूरी सबोपदेशक का बिंदु है या बात है. Solomon comes to this final concluding thought that all of life is pointless outside of a relationship with God demonstrated through fearing him and obeying him. और सुलेमान ये कहता है इस पूरे सबोपदेशक की पुस्तक के द्वारा कि ये जो चीज है हमारे परमेश्वर के साथ संबंध को प्रकट करती है और परमेश्वर के प्रति प्रेम और आज्ञाकारिता को. When we were doing the series on the early chapters, you might have been wondering, where is Solomon taking us? How crazy this ride is. और जब हम शुरुआती अध्यायों को पढ़ रहे थे तो हम ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये नहीं समझ में आ रहा था
सुलेमान हमें किस यात्रा की ओर लेकर चल रहा है। But I'm so glad as we come to chapter 11 and chapter 12, we come to the place where we need to be. और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को उस 11वें और 12वें अध्याय के द्वारा अब हम समझ सकते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। That place where we are taken into the presence of God. उस जगह की ओर जा रहे हैं जहां परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में लेकर जा रहा है, Where we see the true value and meaning of life. जहां पर हम जीवन का उद्देश्य और मूल्य क्या है उसको जान पा रहे हैं। One theological commentator said like this. एक धर्म वैज्ञानिक टिप्पणीकार ने ऐसा कहा है, The final message of Ecclesiastes is not that nothing matters in the end, यहाँ पर वो ऐसा कहना चाहता है जो अंतिम संदेश है सबोपदेशक की पुस्तक का, उसका मतलब ये नहीं है कि अंत में किसी चीज का मतलब नहीं रहता, but that everything matters in the end. कि लेकिन हर चीज का मतलब होता है अंत में। And that's why today's message is titled Everything Do Matter in the End. इसलिए आज सुबह का समय का प्रचार का शीर्षक यह है कि सच में अंत में हर चीजें मूल्य रखती हैं, उसका कुछ मतलब I है। know in India we are used to the saying कोई बात नहीं. मैं जानता हूं हमारे भारत में ये चीज बहुत सामान्य रूप से बोली जाती है, कोई बात नहीं। And in Australia they say doesn't matter mate. और वहां पर ऐसा बोला जाता है कि कुछ मतलब नहीं बनता इस चीज She'll का, be all right. ठीक हो जाएगी वो। And that means कोई बात नहीं. उसका मतलब है कोई बात नहीं, But बात है. लेकिन बात है। ऐसे नहीं है कोई बात नहीं है, बात है ना? So when you say कोई बात नहीं, really that is not the truth. जब आप ऐसा कहते हैं कि कोई बात नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई सत्य नहीं है पूरी रीति से। And the searcher of the Israel, Ecclesiastes, Solomon is concerned with that in the book of Ecclesiastes. और सुलेमान जो है सबोपदेशक की पुस्तक में उस बात की चिंता करता है That through the tragedies of our lives, कि हमारे जीवन की दुर्घटनाएं या दुर्भाग्य जो हैं through the troubles of our और lives, हमारे जीवन के जो भी संघर्ष हैं through the difficulties and the infirmities of life, और जीवन की कठिनाइयां और जो कमजोरियां हैं, before it is too late, इससे पहले कि वो ज्यादा देर हो जाए, that we find the secret of meaning and purpose in life. कि हम जल्दी से इस रहस्य को जान लें कि हमारे जीवन का मकसद और उद्देश्य क्या है। And so Solomon begins verse 1, chapter 12 verse 1. Turn to your Bible. इसलिए सुलेमान जो है सबोपदेशक की पुस्तक 12वें अध्याय के पहले पद से शुरू करता And he है is giving a word to the young people. और वो जवानों को ये वचन देता है। If you are a young person or a young person in heart, take heed to what Solomon is saying. अगर आप जवान हैं, अपने दिल में जवान है, तो सुलेमान के द्वारा दिए गए इन वचनों को ध्यान से He सुनिए। said, remember also your creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw nigh, when you will say, I have no pleasure in them. यहाँ लिखा है, अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि वो विपत्ति के दिन या वो वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। It is very clear that Solomon is speaking to young people ये बहुत ही स्पष्ट है यहाँ पर कि सुलेमान जवानों से बात कर रहा है to think carefully about their creator. कि वो बहुत ध्यान से अपने सृष्टिकर्ता के बारे में सोचें, Not just to merely assume that he is somewhere out there and I will get to him in due course of time. सिर्फ ऐसी ही साधारण रूप से ये सोच कर ना बैठ जाएं कि ईश्वर वहां है, परमेश्वर वहां है और वहां पर नियुक्त समय में किसी समय में वो आएगा। No, Solomon is saying right now is the time you need to run to your creator. सुलेमान कहता है यही समय है, ठीक इसी समय में अभी तुमको अपने सृष्टिकर्ता के पास भागना To है, recall God's presence into your daily life. कि प्रतिदिन के जीवन के लिए परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में To बुलाना live है, in a right relationship with him. परमेश्वर के साथ सही संबंध में जीवन जीना To है, discover the greatness of the glories of God while you are still young. कि अब जब हम जवानी है तभी हमको खोज कर लेनी है परमेश्वर की महानता की और परमेश्वर के प्रेम की, Before it is too late. इससे पहले कि वो बहुत देर हो जाए। Because the Solomon is saying tragedies awaits, evil days are coming. क्योंकि सुलेमान कहता है दुर्भाग्य वर्ष, बुरे दिन आ रहे हैं, Those evil days are described in verses 2 to 8. और हम उन बुरे दिन के बारे में पद 2 से 8 तक पढ़ते हैं। In a vivid and a very beautiful imagery, he is describing the aging process of each one of our life. एक बहुत ही खूबसूरत रूपांतक रूप से वो इस चीज को प्रकट कर रहा है कि हमारा जीवन किस तरह से उम्र में बढ़ता चला So जाता let's है। turn to verses 2 to 8 and see how
how beautiful this aging process is going to look like. आइए मिलकर 2 से लेके 8वें पद तक पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे उम्र का बढ़ना होता है। Before the sun and the light and the moon and the stars are darkened and the clouds return after the rain, in the day when the keepers of the house tremble and the strong men are bent, and the grinders cease because they are few, and those that look through the windows are dimmed, and the doors on the streets are shut, when the sound of the grinding is low, and one rises up at the voice of a bird, and all the daughters of song are brought low, they are afraid also of what is high, and terrors are in the way. The almond tree blossoms, the grasshopper drags itself along, and desire falls before man goes to his eternal home, and the mourners go about in the streets, before the silver cord is already snapped, or the golden bowl is broken, or the pitcher is broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern. And the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. Vanity of vanities, says the preacher, all is vanity. इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेर हो जाएं, या वर्षा होने के बाद बादल फिर घिर जाएं, उस समय घर में पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे, और पिसनहार थोड़े ही कारण काम छोड़ देंगे, और झरोकों में से देखने वाले अंधे हो जाएंगे, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, और चक्की पीसने वाले का शब्द धीमा होगा, और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा, और सब खाने वालों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उसको भय आ जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा, और टिड्डी भी भारी लगेंगी, और भूख बढ़ाने वाले फल फिर काम न आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपने साथ के घर सदा के घर को जाएगा, और रोना पीटने वाला सड़क सड़क फिरेगा। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोते के पास घड़ा फूटेगा, और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों के त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया था लौट जाएगी। उपदेशक कहता है, ये व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। Wow. How many of you like this process? आप में से कितने लोगों को ये प्रतिक्रिया अच्छी लगी? It is not fun, ये कोई मजाक नहीं है, but that is awaiting each one of you. लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो हम सबों का इंतजार कर रही है। The reality is you are getting old every single day. सत्य ये है कि प्रतिदिन हम बुजुर्ग होते चले जा रहे हैं। So young people, you think you are handsome, you think you are strong, don't take it for granted. तो इसलिए जवान लोग आप ये सोचते हैं आप लोग बहुत ही दिखने में अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, इस चीज को पक्का ना ले ले अपने लिए। Talk to us, some of us who are older, and we will tell you how quickly those times left us. और हम लोगों को देखिए जो थोड़े बुजुर्ग होते जा रहे हैं, वो बता सकते हैं कि कैसे वो समय से हम गुजरे हैं। It feels like yesterday I was 19. मुझे ऐसा लगता है कल ही वो दिन था जब मैं 19 वर्ष का था। But look at me. लेकिन अब मुझे देखो। On Friday, I celebrated my real birthday and turned 55. और शुक्रवार के दिन में मैंने अपना असली जन्मदिन बनाया और मैं 55 वर्ष का हो गया हूँ। And on 55th birthday, on the very birthday, I went to see my orthopedic doctor for the first time. और 55 अपनी जन्मदिन के दिन में मैं हड्डियों के डॉक्टर को मिलने के लिए गया था। Because I was doing my exercise and suddenly I realized my right knee was giving me some trouble and there was a swelling on the right side of my right knee. क्योंकि मैं जब कसरत कर रहा था तो उस समय मैंने देखा कि मेरा जो घुटना है, सीधा घुटना, उसमें मेरे को दर्द हो रहा था और थोड़ी सी सूजन भी थी। It's been going on for some time, but I refuse to admit that I have a problem. ये कुछ समय से चल रही थी और मैं किसी तरह से इनकार कर रहा था कि मुझे कोई समस्या नहीं है। But now I have to travel quite a lot. लेकिन अब मुझे ज्यादा यात्रा करनी है। I have to stand quite a lot. मुझे ज्यादा देर के लिए खड़ा रहना है। And so I realized I need to address this. और इसलिए मैंने ये सोचा कि ये जरूरी है कि मैं इस परेशानी को देख लूं। And the pain happened on the very day of my birthday.
और ये दर्द उसी दिन हुआ जिस दिन मेरा जन्मदिन था। And so I was at a doctor. इसलिए मैं जो हूँ डॉक्टर के पास And he गया said, James, we need to do an x-ray on your knee. और फिर उन्होंने बोला कि एक एक्सरे की जरूरत है आपके पैर में। It didn't take long. ज्यादा समय नहीं लगा। The x-ray result came. एक्सरे का जो परिणाम था वो आ गया And the result was declared. और जो उसका निर्णय दे दिया गया। And he said, I have osteoarthritis stage 2. और बताया गया कि मेरे को जो अर्थराइटिस है उसका दूसरा मैं उस चरण पे पहुंच चुका I हूँ। called my mom. मैंने अपनी माँ को बुलाया। I said, thank you for the gift of osteoarthritis. मैंने अपनी माँ को बोला ये दान मुझे तुमसे मिला है क्योंकि तुमको भी ये है। she is going to get her knee replaced in few days. क्योंकि कुछ समय में वो अपने जो है घुटने को बदलवाने वाले हैं। And so she has blessed me with her inheritance. और इसलिए उन्होंने मुझे आशीषित कर दिया, जो उनको परेशानी थी वो मुझे मिल गई। Friends, your knee is going to hold the same way as it is right now. मेरे मित्रों, अभी जो आपके घुटनों की परिस्थिति है वो आपको ऐसी ही पकड़ के रखने You वाली are है। going to get old. आप बुजुर्ग हो जाएंगे। And there will be other things on your mind that will be looming large over other than how to work out your salvation. और आपके पास और भी चीजें आपके दिमाग में होंगी सोचने के लिए कि कैसे आप अपने उद्धार का कार्य करेंगे। And so now is the time, Solomon says, that you need to remember your creator. इसलिए सुलेमान कहता है अभी वो समय है कि आपको अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण करना Because है, evil days are ahead of क्योंकि you. बुरे दिन हमारे आगे आ रहे हैं। Remember the creator of remember your creator in the days of your youth. अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण करना। I don't know who wrote this, मुझे ये नहीं पता कि ये किसने लिखा but था, I came across this list of things that makes you understand that you are actually getting old. लेकिन मैं इन किन्हीं चीजों से मुझे पता चला किन्हीं चीजों के बारे में जो बताता है कि आप बुजुर्ग होते जा रहे हैं। You may have your own list of things that makes you believe you are getting old. शायद आपके पास भी कुछ सूचियां होंगी जिसको आप देखकर बोलते होंगे कि मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ। But here are some that I wrote. लेकिन यहाँ पर कुछ हैं जो मैंने लिखी हैं। You and your teeth does not sleep together. जब आप बुजुर्ग होने लगते हैं तो आप और आपके दांत एक साथ नहीं सोते। Hello. Some of you young people don't even get what I'm talking about. कुछ जवान लोगों को समझ नहीं आया कि मैंने क्या बोला। My mom puts her teeth into a sterile water overnight, and the teeth sleep separate from her. और मेरी माँ जो है वो अपने दांतों को निकाल कर अलग से रखती है, तो इसलिए दांत जो है अलग सोते हैं। Every morning takes up the teeth and say, "Good morning, teeth. Welcome back." इसलिए हर सुबह उठकर शुभ प्रभात दांतों को बोलकर और उसको स्वागत करके दांत लगा लेते हैं। Oh my goodness. Number 2. दूसरी बात, When all you want for your birthday is to not be reminded of your age. जब आप चाहते हैं कि आपके जन्मदिन के दिन आपकी उम्र आपको याद ना दिलाई जाए। When you are young, you will boldly shout out to everybody how old you are. जब आप जवान होते हैं तब आप जोर से चिल्लाकर अपनी उम्र सबको बताते We हैं। were at Mama Yolanda's birthday yesterday, हम कल जो है मामा ओलंडा के बर्थडे में थे and there was a big sign, it says 90. और वहां पर एक बड़ा सा चिन्ह लगा था जो कहता था 90। It was coincidental that she held her 90th birthday, the sign in her hand, but she tilted the 9 and it turned out to be 60. और वो एक अचानक से ऐसा हो गया कि जो 9 था वो उन्होंने उल्टा घुमा दिया तो वो 60 बन I'm गया। sure she wished she was 90. मुझे That's the पता है thing. वो आशा कर रही थी कि वो 60 वर्ष की होती। See, the third one. तीसरी बात, Your idea of weightlifting is standing up. अब आप जो सोचते हैं कि आप वजन उठाना चाहते हैं उस चीज How many को of you like that? I go to the gym with these guys these days, and that's what I do. अभी मैं इन जवान लड़कों के साथ जाता हूँ जिम में, मैं वही करता हूँ। Number 4. चौथी बात, It takes longer to rest than it did to get tired. अभी क्या होता है ज्यादा समय आराम करने के लिए लगता है इसके बजाय कि हम थक जाते हैं। Number 5. पांचवी बात, Your memory is shorter and your complaining lasts longer. आपकी याददाश्त तो वो छोटी हो जाती है लेकिन आपकी शिकायतें बहुत लंबी हो जाती हैं। Right? Number 6. छठी बात, Your address book has mostly names that starts with doctor. आपके पास जो आपका पता रखने की जो किताब होती है उसमें हमेशा ज्यादातर नाम जो होते हैं वो डॉक्टर के होते हैं। In fact, Ma'am Yolanda is traveling with her own private doctor, her own son. और जो मैम ओलेंडा है वो अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर चल रही है जो उनका बेटा है। Number 7. सातवीं बात, You sit in a rocking chair and can't get the chair rocking. और आप एक झूलने वाली कुर्सी में बैठते हैं और उसको आप झुला नहीं पाते हैं खुद।
That's a good one. Number 8. 8वीं बात, Everything hurts, and what doesn't hurt doesn't work. हर चीजों से चोट पहुंचती है और जिससे चोट नहीं पहुंचती है वो काम ही नहीं करती है। Number 9. 9वीं बात, You sink your teeth into a steak and they stay there in the steak. आप अपने दांतों को जो है एक मांस के तले दबा लेते हो, मीट के तले, उसके बाद आप उससे दांत निकाल नहीं पाते हो बाहर। All right. There are many, and the list goes on, but I won't have time to read ऐसी all of that. सूची और भी है और बढ़ती चली जाती है। But the focus of our study today is not on the initial verses, as gloomy and sad as they are. हम जो है अपना ध्यान आज सुबह के समय वो आरंभिक पदों की ओर नहीं लगाएंगे जो बहुत ही उदासीन है, But what definitely want to say to the young people to follow your Creator. लेकिन स्पष्ट रूप में मैं जवानों से कहना चाहता हूँ, अपने सृजनहार को स्मरण करो। So in the bye-bye stages of what Solomon is writing here, we want to focus on verse 13 and 14 now. हम अपना केंद्र जो है इस समय 14वें और 13वें पद में बिताएंगे। And there are 3 things that I want to highlight for the remaining of our time. और आने वाले जो कुछ समय हमारे पास है उसमें 3 मुख्य बातों की ओर अपना ध्यान Let's look at verse 13. 13वें पद की ओर देखते हैं। Here Solomon says, the end of the matter all has been heard. और यहाँ पर ऐसा सुलेमान कहता है कि अंत की सारी बातें सब कुछ सुन ली गई हैं। Everything has been heard. सब कुछ सुन लिया गया है। 11 chapters have been written. 11वें पद 11 अध्याय लिखे जा चुके हैं, narrating decades of experimentation on life and its meaning and purpose. सदियों की जो है वो प्रयास किया गया है ये जानने के लिए कि जीवन का मकसद और उद्देश्य क्या है। Solomon says now is the time to make some decisions. सुलेमान कहता है अब ये समय है कि हमको कुछ निर्णयों को लेना है। It is time to decide. ये समय है कि हम किसी चीज का निर्णय ले Friends, लें। there comes a stage and a season in our life where we have to make some decisions. मित्रों, हमारे जीवन में एक समय एक जगह ऐसी आती है जहां हमको किसी निर्णयों को लेना है। Throughout the stages of the book of Ecclesiastes, सबोपदेशक की पूरी जो श्रृंखला थी, जो स्तर था पूरे सबोपदेशक की पुस्तक का, we are confronted with the seeming meaningless of life. हमने अलग-अलग चीजों में आमना सामना किया कि जीवन में कई जिसकी चीजों का अर्थ नहीं है उन He बातों was से। the most richest man and he was the most wisest man who lived in his day. वो सबसे धनी व्यक्ति और सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति था। And in the same way, we also want to pursue the meaning and purpose of और life. वैसे ही हम भी अपने जीवन में मकसद और उद्देश्य पाना चाहते And so हैं, we go looking for that meaning and purpose. इसलिए हम उस उद्देश्य और मकसद को पाने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। Solomon has already done that experimentation for us. सुलेमान ने हमारे लिए पहले से उन चीजों का प्रयास कर So we लिया don't है, have to waste our money or our time to go through all those pains. इसलिए हमको उन सब चीजों से गुजरने के लिए ज्यादा समय नहीं लगाना है। Paul, writing to Timothy, पौलुस जो है वो तिमोथी को लिखता है, he described some people in this manner in 2 Timothy chapter 3 verse वो 7. इस तरह से लोगों के बारे में व्याख्यान करता है। दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय का 7वें पद में, 2 Timothy chapter 3 verse 7, Paul says, always learning and never be able to arrive at a knowledge of the truth. वहां पर ऐसा वो कहता है, दूसरा तिमोथियुस उसका 3 अध्याय के 7वें पद में, और सदा सीखती हो रही है पर सत्य की पहचान तब नहीं पहुंच पाती। Have you seen those people? They're always learning, they're always studying, but never reaches a decision point. आपने देखा है ऐसे लोगों को जो हमेशा सीखते रहते हैं लेकिन कभी भी उस निर्णय लेने वाली कगार पर नहीं आते। We have many people that come to church months after years after years, but they never make a decision to change. कई ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में सालों साल आते हैं, महीनों आते हैं, लेकिन उस निर्णय पे नहीं आते कि वो अपने जीवन को बदल दें। We don't want to be like that. हम उनकी तरह नहीं होना We चाहते, want to change. हम बदलना चाहते We हैं, need to make some decisions. हमको कुछ निर्णयों को लेना है। And that's why we have the book of Ecclesiastes. इसीलिए हमारे पास सबोपदेशक की पुस्तक है। Solomon has summarized what this world has to offer in chapter 1. सुलेमान ने पहले अध्याय में निष्कर्ष निकाल दिया है कि हमारे जीवन किस प्रकार से है। He says everything that this world has to offer is vanity, vanity, vanity. वो कहता है इस संसार को जो भी हमको देना है वो व्यर्थ ही है
और व्यर्थ ही है। It will not last. वो कभी भी सदा के लिए बना नहीं रहेगा। Why do you waste your time searching for it? क्यों इतना समय खराब करते हो उस चीज की खोज करने के लिए? Solomon says we have an option that lasts for eternity. सुलेमान कहता है हमारे पास एक विकल्प है जिसके लिए हमें अनंत काल तक पहुंच सकते हैं। Life under the sun, S-U-N, is vanity. जीवन जो सूर्य के नीचे है वो व्यर्थ ही है। But life under the sun, S-O-N, Jesus, is meaningful and लेकिन purposeful. जीवन उस पुत्र के नीचे, यीशु के नीचे, वो अर्थपूर्ण है। And here at the end of the book, और यहाँ पर इस किताब के इस अध्याय के अंत में Solomon is saying the end of the matter. सुलेमान कहता है अंतिम वो विशेष बात, Very decisive for him, for Solomon. वो बहुत ही निर्णायक रूप से इस बात को यहाँ कहता है। God is asking you today, परमेश्वर आज आपसे पूछता है, what are you waiting for? आप किस चीज का इंतजार कर रहे You हैं? have been informed, you have been taught, you have been given all the various options available to you. Isn't it time to make a decision? ये आपको बता दिया गया है, जिस बात की सूचना आपको दे दी गई है, तो आप किस चीज का इंतजार करते हैं उस निर्णय को लेने के लिए? Jesus is saying, why not follow me? यीशु आपसे कहता है क्यों नहीं मेरा पीछा कर लेते? Am I not better than those things that the world has to offer? जो इस संसार को हमको देना है, क्या मैं उससे उत्तम नहीं? My dear friends, at some point or the other, we have to make up our mind. मेरे मित्रों, जीवन में कभी ना कभी हमको अपने जीवन के किसी क्षण में निर्णय को लेना है। Otherwise, we'll keep searching for meaning in this world, नहीं तो हम इस संसार में अर्थ ही को ढूंढते रहेंगे, or we accept our meaning from God. और नहीं तो हम अपने जीवन का मकसद परमेश्वर से पाएंगे। We have to land on one side or the other. हमको कहीं ना कहीं तो आकर उतरना ही है। We want to think through and weigh through all the options, हमको हर चीजों को जो है उसको तोलना है, उसके बारे में जांचना है। but you cannot sit on the fence for too long. लेकिन आप कगार पे बहुत समय तक बैठ नहीं सकते हैं, And we're going to have to make up our mind. और इसलिए हमको अपने दिमाग को उस तरह से तैयार Do you करना want to है। choose to live this way or live this way? क्या आप अपना जीवन इस तरह से बिताना चाहते हैं या इस तरह से बिताना Some चाहते of हैं? us are not sure where I'm supposed to land. हम में से कई ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं है कि हमें कहाँ उतरना है। Maybe you are in the beginning stage of that journey with God, शायद आप उस शुरुआती स्तर पे हैं परमेश्वर के साथ उस यात्रा में, but do not delay it, लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार ना करें, because the days of evil are around the corner, Solomon says. क्योंकि बुरे दिन, सुलेमान कहता है, बस कोने पे ही है। It will be too late, वो बहुत देर हो जाएगी, and you will not be able to make a decision at that moment, और आप उस क्षण में निर्णय नहीं ले पाएंगे, because things can happen in our life at the fraction of a second. क्योंकि हमारे जीवन में कुछ भी चीज क्षणों में हो जाती है। So today, इसलिए आज ask the Lord for help. परमेश्वर से मदद को मांगे। Help me to make a decision. परमेश्वर आप मेरी मदद करें कि मैं निर्णय I have ले लूं। wandered and wasted my time, my money, my resources, all. It is enough. मैंने अपना बहुत धन और अपनी जो चीजें मेरे पास थी, समय है, वे व्यर्थ कर दिया, वो बहुत काफी है। The fact that you are sitting here and listening to this आज सत्य ये है कि अगर आप यहाँ बैठकर सुन रहे हैं, means God wants you to make a decision today. मतलब ये है कि परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि आप निर्णय को ले लें। Hallelujah. Why not follow God? क्यों ना हो कि हम परमेश्वर के पीछा करें? Why not give your life to Jesus fully? क्यों नहीं ऐसा हो कि हम अपना जीवन पूरी रीति से यीशु को दे दें? Don't be a Sunday Christian. सिर्फ एक रविवार के मसीही ना बने, Don't be a Christian to please your wife or your husband. सिर्फ मसीही इसलिए ना बने कि आप अपने पति को या पत्नी को खुश करना चाहते Don't हैं। just come to church thinking, I will just go to church on Sunday so that my kids will have a better future. रविवार के सुबह इसलिए आराधना में ना आए कि मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य होगा। Think about your life. अपने जीवन के बारे में Think about सोचें, your eternity. अपने अनंत काल के बारे में My सोचें। dear friends, days of evil are around the corner for मेरे you. प्रिय मित्रों, हमारे जीवन के लिए बुरे दिन बिल्कुल कोने पर हैं। You will not have this opportunity to make a decision like this right now. आपके पास जो अवसर आपको अभी मिला है, वो दोबारा शायद नहीं मिलेगा। Now is the time. अभी वो समय है। Solomon is proving to us, सुलेमान हमको ये परिमाण दे रहा है, and we have lived long enough to feel it and experience what this man have been through. और हमने अपना जीवन अच्छे से बिता लिया है ये जानने के लिए कि ये व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है। John chapter 3 verse 16. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का For 16वां God पद, so loved the world, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम He रखा, gave His only Son Jesus. उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, Whoever believes in Him ताकि उस पर जो कोई भी विश्वास करे will not perish, वो नाश नहीं हो, but will have eternal life. लेकिन अनंत काल का जीवन पाए। Hallelujah.
God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, He's giving you an opportunity वो आपको एक अवसर देता है to give up, कि त्याग दें, to give up the evil things, कि बुरी चीजों को त्याग दें, to give up the alcohol, कि शराब की आदत को त्याग to दें, give up tobacco, कि धूम्रपान की चीजों को त्याग to दें, give up drug addictions, सारी ये जो ड्रग्स की जो चीजें हैं उनको त्याग दें, to give up bad words that comes out from the inner person of your heart, हमारे अंदर के मनुष्यत्व से जो बुरे शब्द मुंह से निकलते हैं उनको त्याग दें, sinful ways of life. हमारे जीवन के पापी तरीकों को त्याग Make a दें, decision निर्णय ले लें, today. आज I will follow Jesus. मैं यीशु के पीछा करूंगा, I want to live different. मैं अलग तरह से जीना I चाहता हूँ, want to follow God as मैं- Solomon has finally decided. जैसे अंत में सुलेमान ने निर्णय ले लिया वैसी मैं भी यीशु के पीछे चलूंगा। Hallelujah. Hallelujah. You're looking for something that is going to last in this life. आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज देख रहे हैं जो अनंत काल के लिए हमेशा के लिए रहेगी, Something that is satisfying. कुछ ऐसी चीज जो आपको संतुष्टि देगी, Something that won't let you down sooner or later. कोई ऐसी चीज जो आपको नीचे नहीं करेगी, ना अभी ना कभी और, Something that you don't have to say goodbye to. कोई ऐसी चीज जिसको आपको कभी भी हमेशा के लिए अलविदा नहीं कहना। Here is God offering you those things. यहाँ पर परमेश्वर आपको ऐसी ऐसी चीजों का न्योता देता है। We go looking in this world. हम इस संसार में चीजों के पीछे देखने के लिए We भागते go हैं, looking for the newest tattoo style. हम अपने जीवन में नए तौर तरीकों के पीछे भागते We हैं, go looking for the newest trendy clothes. हम अच्छे अच्छे आजकल के पहने हुए कपड़ों के लिए, पहनावे We go के पीछे looking for भागते the हैं, modern latest car. हम आजकल की आधुनिक कार के पीछे भागते हैं, We're trying to compete with our neighbor हम अपने पड़ोसियों के समान बनना चाहते हैं, because we want to be people who matters. क्योंकि हम ऐसे वो लोग बनना चाहते हैं जिसकी कोई कीमत है। But लेकिन God is saying to you, परमेश्वर हमसे कह रहा है, you are not just made for this world. आप सिर्फ इस संसार के लिए सृष्टि नहीं की गई है, You are made for something more significant. आप और भी महत्वपूर्ण चीज के लिए रचे गए हैं। You are made for more than just this world. आपकी जो सृष्टि हुई है वो संसार से बढ़कर के लिए हुई है, But somehow, लेकिन किसी तरह से this world is beating you so bad to believe that everything is expendable. ये संसार आपको किसी तरह से उस चीज के पीछे दौड़ा रहा है कि ये चीज हमेशा के लिए बनी रहेगी। This world is trying to make you think that everything is an illusion. ये आपको ऐसा महसूस करा रहा है कि सब चीजें मनगढ़ंत हैं। I was watching some reels on Facebook, these teenagers having taken the drugs, behaving so cowardly. मैंने देखा कि फेसबुक की जो रील्स आती हैं उसमें कैसे जवान लोग नशे की चीजों को लेकर अजीब से विचित्र They're removing व्यवहार their कर रहे हैं। clothes. वो अपने कपड़े निकाल रहे They हैं, can't वो stand. खड़े नहीं हो सकते They हैं, don't know how to talk. उनको नहीं पता बात कैसे करनी है, They're destroying their वो life. अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। My dear friends, today you are smoking a cigarette. आज अगर हम एक सिगरेट फूकते हैं, Tomorrow you will be tempted to take तो marijuana. कल आप जो है आपको परीक्षा आएगी कि आप कुछ बुरी चीज को पी लें, Marijuana will take you to alcohol. और फिर वो चीज आपको जो है शराब पीने की ओर ले जाएगी, Alcohol, and then you go to the next level. और फिर आप शराब पियेंगे, फिर आप दूसरे स्तर पे And जाएंगे, you go to the next और level. फिर आप दूसरे लेवल पे There जाएंगे। is no end to the misery that you are bringing upon you and your family. आपके पास कोई रोक ही नहीं है कि आप अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को खराब कर देंगे। Think about the people that you are hurting because you are making stupid decisions. सोचिए आप उन लोगों के बारे में जिनको आप चोट पहुंचाते हैं उन चीजों को कर कर जो आप अपने लिए नुकसान के लिए करते हैं। If you love God, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते if you हैं, love your loved ones, अगर आप अपने प्रिय लोगों से प्रेम you will करते make the हैं, decision today. आप निर्णय आज लेंगे। If you have alcohol in your home, अगर आपके घर में शराब है तो maybe you are afraid of your wife and you're hiding it in your car. शायद आप अपनी पत्नी से डरते हैं और अपनी अपनी गाड़ी में छुपा रखी Go है। home, take it in front of your wife, घर जाइए और उसको अपनी पत्नी के सामने लेकर आइए, open it खोल दीजिए and throw it down the toilet और उसको फेंक दीजिए शौचालय में and flush it और उसको बहा दीजिए and say it in the name of Jesus. और बोलिए यीशु के नाम I से, will never touch alcohol मैं again. कभी दोबारा शराब नहीं छूंगा। How many of you will say that? आप में से कितने लोग ऐसा I'm not कहेंगे? asking you to raise your hand right मैं now. नहीं चाहता कि आप अपना हाथ अभी But I उठाएं, know that there are people who are struggling with this decision that you have to make. लेकिन मैं जानता हूँ हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस निर्णय को लेने से बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। Hallelujah. Either you are for God
या तो आप परमेश्वर के लिए Either हैं, you are with God, या परमेश्वर के साथ हैं, you are outside of God, या परमेश्वर से बाहर हैं, or you are against God. या परमेश्वर के विरोध में You हैं। cannot be in between. आप बीच में नहीं हो सकते। Make a choice decision to be with God. आज ही परमेश्वर के साथ एक स्पष्ट निर्णय लेने के लिए कि यीशु के परमेश्वर के साथ चलूंगा, उसका निर्णय लेना है। Hallelujah. Now is the time to decide. अभी वो समय है कि हमको निर्णय लेना है। I don't know how the Holy Spirit is prompting in your heart for each one of you. मुझे नहीं पता कि आप सबों के जीवन में पवित्र आत्मा कैसे कायलता दे रही But है, there is some decision that everyone needs to make today. लेकिन ऐसा एक निर्णय है जो हम सबों को अपने जीवन के लिए लेना है। Every person sitting in this room needs to make a decision today about something that the Holy Spirit is speaking to your heart. हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक निर्णय लेना है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जिस चीज के लिए कायलता And मिलती that है। brings me to the second observation from Solomon's final words. और मुझे सुलेमान के अंतिम शब्दों में जो उसकी खोज है वो दूसरे बिंदु की ओर लेकर चलती And है। that is, it is time to obey. ये समय है कि हमको आज्ञा माननी है। Let's look at verse 13. 13वें पद की ओर देखते हैं। It says, fear God यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का भय मान and keep his commandments, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, for this is the whole duty of man. क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कार्यवत यही है। Fear God परमेश्वर का भय मान and keep his और commandments, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, for this is the whole duty of man. क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। Becoming decisive to follow Christ means to fear and follow God. अपने परमेश्वर के लिए निर्णय लेना का मतलब यह है कि हम परमेश्वर का भय मानकर उसके पीछे चलते हैं। That's the proper order. ये तरीका ठीक है। Number one, सबसे पहला fear God. परमेश्वर का भय Number मानना। two, दूसरी बात follow God. उसके पीछे चलना। Obedience comes from fear. हमारे पास जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है वो परमेश्वर के प्रति भय रखने से आती है। Obedience follows fear. आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति भय का पीछा करती है। And our behavior, our good conduct comes from our worship of God. और हमारा अच्छा व्यवहार जो है वो हमारी आराधना करने के द्वारा जो परमेश्वर को हम देते हैं उससे आती है। When you come to church, जब आप कलीसिया में आते हैं, you worship God, आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, you can truly know you can behave better. आप अच्छे से जान सकते हैं कि आप अच्छे सा व्यवहार करेंगे। How many of you have experienced that? आप में से कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है? I behave very good, much better when I worship God. मैं जब परमेश्वर की आराधना करता हूँ मैं बहुत अच्छे से अपने आप को प्रस्तुत करता And हूँ। I'm not talking about just Sunday morning worship. और सिर्फ संडे रविवार की सुबह की आराधना के बारे में नहीं बोल रहा हूँ I'm मैं। talking about worship in our private times when we are alone with God, when you're driving the car, when you're going to the work, when you're working, when you're washing dishes, when you're making roti, worshiping Jesus. मैं उस समय की भी बात करता हूँ जब आप गाड़ी चलाते हैं, अपना कार्य करते हैं, जिसी भी चीज में आप क्यों ना हो, उस समय भी जब आप आराधना करते हैं। Hallelujah. Right conduct follows worship. एक अच्छा जीवन का पीछा जो है आराधना करती है। Knowing God, when you go know God more, जब हम परमेश्वर को ज्यादा जानते हैं, we begin to follow God better. हम परमेश्वर को ज्यादा अच्छे से उसका पीछा करने We लगते हैं। cannot reverse this order. हम इस चीज को उल्टा नहीं कर सकते हैं। Knowledge of God. परमेश्वर के का ज्ञान, Knowledge of God comes from the reading of His Word. परमेश्वर के वचन का ज्ञान परमेश्वर के वचन को पढ़ने से आता है। Don't be just satisfied by listening to 45 minutes of sermon on Sunday, 40 से ज्यादा मिनट के प्रचार को रविवार में सुनकर संतुष्ट ना हो जाएं, but read the Word of God for yourself. लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने लिए पढ़ें। The knowledge of God changes your life. परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमारे जीवनों को बदल देता है। Amen? God does not say to us, परमेश्वर हमसे ये नहीं कहता obey and I will save you. तुम मेरी आज्ञा मानो और मैं तुम्हें बचा लूंगा, But God says to us, लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है obey because I have saved you. मेरी आज्ञा मानो क्योंकि मैं तुम्हें पहले से ही बचा चुका हूँ। Obey because I have saved you. मेरी आज्ञा मानो क्योंकि मैं तुम्हें पहले से ही बचा चुका हूँ। We obey because we see in God something so wonderful. हम कई बार परमेश्वर की आज्ञा इसलिए मानते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के अंदर कुछ चीज अद्भुत देखते हैं। When you see something wonderful in somebody, जब आप किसी चीज के अंदर कुछ अच्छा देखते what do हैं, you want to do? आप क्या करना चाहते You हैं? want to hang around that person आप more, उस व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। right?
You want to follow that person. आप उस व्यक्ति का पीछा करना चाहते हैं। How many of you see something wonderful in God? आप में से कितने लोग परमेश्वर में कुछ अच्छा देखते हैं? How many of you see God is good? आप में से कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर अच्छा है? God is good. परमेश्वर अच्छा है। He is gracious. वो अनुग्रहकारी He है। is loving. वो प्रेमी है। He is forgiving. वो क्षमा करने वाला है। He is everything that any mind can comprehend. वो सब कुछ है जो एक व्यक्ति अपने दिमाग में सोच सकता है। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, if he is the best out there that your eyes can see, अगर वो सबसे उत्तम है जो आपकी आंखें देख सकती हैं, why not follow him? क्यों ना उसका पीछा करें? Why not follow him? क्यों ना उसका पीछा करें? Paul said, I count everything else trash. पौलुस कहता है मैंने हर बातों को कूड़ा समझ लिया है। I count everything dung, he says. मैंने हर चीजों को ऐसी ही भूसा समझ लिया है। There's nothing that can compare to the glory of God. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर की महिमा से हम जिसकी तुलना कर सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Pastor Tim Keller says like this. टिम केलर ने प्रभु के दास ने ऐसा कहा है, When the Bible talks about the fear of God, जब बाइबल जो है परमेश्वर के भय के बारे में कहती है, it means an inner state, वो हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व के बारे में an बताती है। inner condition of awe and amazement and wonder before the magnitude of the love and the power and the greatness of God. और वो बताती है कि हर प्रकार से अलग अलग आकारों से हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति वो आभार, वो ताजुब जो हम परमेश्वर की महानता को देखकर करते हैं। It is an inner condition of awe and respect. ये हमारी अंदरूनी जो परिस्थिति है अंदर की, वो परमेश्वर के प्रति आदर और भक्ति के लिए जो है, Of fear and trembling, और जो भय और जो हम थरथराते हैं उस परमेश्वर के of सामने, amazement before not only the power and the holiness, but the love and the mercy of वो God. ताजुब जो सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम और दया के कारण है। Listen to what Pastor says. वो देखिए प्रभु के दास यहाँ क्या कहते The हैं। fear of God means to have God look so huge, यहाँ पर परमेश्वर का भय ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर बहुत बड़ा है, so glorious, वो बहुत ही महिमा में है, so wonderful, बहुत ही अद्भुत है, to, in a sense, bow under the weight of magnitude of greatness. और इतना ज्यादा कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर का जो भारीपन है उसके आकार का वो कितना ज्यादा है। That heaviness of the greatness of God takes your mind so beautifully blessed that you feel so free. वो परमेश्वर की महानता का जो भारीपन है वो इतना ज्यादा है आपके दिमाग में कि आप अपने आप को आशीषित महसूस करते हैं और अंत में अपने आप को आप आजाद महसूस So करते we are हैं। not talking about the fear from the sense of being scared. तो यहाँ पर हम भय के बारे में ये नहीं कह रहे हैं कि हमें डर लगता है। It means to have a reverence of the awe and the greatness of God. लेकिन यहाँ पर कहने की मतलब यह है कि परमेश्वर के प्रति वो आदरपूर्ण भाव और वो इज्जत के साथ भय आना We परमेश्वर don't के लिए। fear God as in terror with somebody coming with a stick to hit you. हमको परमेश्वर का ऐसा भय नहीं है कि हमें खौफ आ गया है कि वो हमारे पास एक डंडी लेकर आ रहा है, वो हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। We fear God हम परमेश्वर का इसलिए भय मानते हैं for His beautiful, क्योंकि वो खूबसूरत है, for He is merciful. क्योंकि वो दयालु है। We fear God because He is holy. हम परमेश्वर का भय मानते हैं क्योंकि वो पवित्र है। We fear God because He is incredibly powerful. हम परमेश्वर का भय मानते हैं क्योंकि वो अद्भुत रीति से ही शक्तिमान है। Can you right now just close your eyes? क्या आप इस समय के लिए अपनी आंखों को क्या बंद कर Just सकते हैं? think of some of the amazing things about God right now. क्या आप परमेश्वर के बारे में कुछ अद्भुत, कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोच सकते हैं? Okay, I want you to picture what you perceive God to be of great, beautiful, value, whatever it is. मैं चाहता हूं कि आप अपनी सोच में उस चित्र को लेकर आए कि आपके लिए वो परमेश्वर कैसा मूल्यवान है। And I want to give you the opportunity, everyone here in the room, to just open your mouth and just say, God, you are. और मैं आप सबों को अवसर देना Whatever it चाहता is. हूं कि आप अपना मुंह खोलकर उस परमेश्वर को Okay, बताएं कि everyone, go परमेश्वर on. Open your mouth. Just say, परमेश्वर God, you आप are कौन है? beautiful. God, you are loving. God, you are merciful. God, you are compassionate. I know we can sit here all day with never enough words to say how great, mighty, and awesome our God is. मैं जानता हूं कि हम यहाँ पूरे दिन भी बैठ जाएंगे तो भी हम
नहीं बता पाएंगे कि हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत और विशाल है। I want you to do this every day. मैं चाहता हूं कि आप ये चीज प्रतिदिन करें। Close your eyes for a few minutes अपनी आंखों को हर दिन बंद करें and just begin to speak out और मुंह से बोलना शुरू करें who God is परमेश्वर कौन है, over your circumstances, अपनी परिस्थितियों के ऊपर, over your situations, अपनी चीजों के ऊपर, over your crisis, अपनी जो घटियां हैं उनके ऊपर, over your temptations. अपनी परीक्षाओं के ऊपर Just speak out. मुंह से बोलना शुरू करें। You know who is listening to this? आपको पता है कौन सुन रहा है उसको? More than God, परमेश्वर से भी बढ़कर there is somebody who is listening to what you're saying. कोई और है जो उसको सुन रहा है And he just hates it और वो उस चीज से घृणा करता है because it's coming from your mouth. क्योंकि वो चीज आपके मुंह से आ रही है And it is the devil. और वो शैतान है। He hates it when you speak the goodness of God. वो घृणा करता है जब आप परमेश्वर की अच्छाइयों के बारे में बताते So हैं। just dish it out to the devil on his face इसलिए उसको बिल्कुल धो डालें, बिल्कुल हटा डालें उसके चेहरे and पे just shout out loud who God और is. चिल्ला चिल्ला कर जोर से बोल दें कि परमेश्वर कौन है। I do that sometimes when I'm in the shower. जब मैं नहा रहा होता हूँ कई बार मैं ऐसा करता हूँ। I do that sometimes when I'm driving the car. कई बार जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तब मैं ऐसा करता When हूँ। I'm angry, जब मैं गुस्सा हूँ, when I'm tempted, जब मैं परीक्षा में पढ़ता I हूँ, shout out the goodness of God. मैं परमेश्वर की भलाइयों के बारे में बोलता It हूँ। sets me free. वो मुझे आजाद कर देती है। It sets me free. वो मुझे आजाद कर देती है। That's what we want. वही हम चाहते We हैं। want freedom. हम आजादी चाहते That's हैं। why we are looking for this stuff out there. इसीलिए हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। There is freedom only in God. हमारी आजादी जो है वो परमेश्वर में ही है। When you fear God जब आप परमेश्वर का भय When you मानते love हैं, God जब आप परमेश्वर से and प्रेम you रखते follow हैं, Him with all your heart, जब आप अपने पूरे हृदय से उसका पीछा friends, करते हैं, there is a freedom that passes all understanding. मित्रों एक ऐसी आजादी है जो हमारे समझ से परे है। I'm free. मैं आजाद हूँ, I am free. मैं आजाद हूँ, I'm not bound by this world. मैं इस संसार के द्वारा बंधा नहीं हूँ। Nothing of this world is going to grab my attention इस संसार की कोई भी चीज मेरे ध्यान को केंद्रित नहीं करेगी, because all that matters to me is God. क्योंकि हर चीज है जो मुझे मूल्य रखती है वो मेरा परमेश्वर है। Amen. And when you love Him और जब आप उससे प्रेम करते and when हैं you put Him as the only source, और जब आप उसको अपने जीवन के लिए हर चीजों का वो माध्यम रखते हैं, there is abundance. वहां भरपूरी There है, is prosperity. वहां संपन्नता है, There is provision. वहां पे पूर्ति होती है। Everything under the sun, SON, will be yours. हर चीज जो सूर्य के SUN. नीचे है वो आपकी हो जाती है। Everything under the SUN, sun, will be yours. हर चीज है जो सूर्य के नीचे है वो आपकी हो When जाती you live under the SON, है जब sun. आप उस यीशु के नीचे जो पुत्र है रहते हैं। Hallelujah. Proverbs chapter 28 verse 14 says, नीति वचन उसका 28 का 14वां अध्याय ऐसा कहता है। Proverbs 28:14, नीति वचन 28 का 14 and I'm reading from King James Version. और यहाँ पर मैं किंग जेम्स वर्जन का अनुवाद से पढ़ रहा हूँ। Happy is the man that fears God. जो मनुष्य नित्य परमेश्वर का भय मानता है वो धन्य होता है। That sounds a little paradoxical. ये बहुत ही विरोधाभास सा लगता है। Fear and happiness? परमेश्वर का भय और खुशी How does that mix? ये कैसे मिल सकती है? Well, that's a beauty of loving God in fear of His awesomeness. ये खूबसूरती है कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं उसकी सुंदर उपस्थिति में। Hallelujah. Fearing God means making Him the centering point of your life. परमेश्वर का भय मानने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बना देते हैं। This is central to our Christian faith. हमारे मसीही विश्वास के लिए वो केंद्र है। Look at verse 13. 13वें पद को देखिए। Solomon says, this is the whole duty of man. और यहाँ पर ऐसा सुलेमान कहता है ये मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। You have one job description. आपके पास एक काम करने का एक आपको You बताया have गया है, one assignment. एक कार्य आपको दिया गया है, One job is given to you. बस एक नौकरी है आपकी जो आपको दी Can गई you है। do that well? क्या आप उसको अच्छे से कर सकते हैं? Can you do that well? क्या आप उसको अच्छे से कर सकते हैं? Fear God. परमेश्वर का भय माने, Keep His commandments. की आज्ञाओं का पालन करें। Amen. This is the whole duty of man. ये संपूर्ण मनुष्य का कर्तव्य है जो उसे करना And है। that brings me to the third and the final observation from the final verses from the greatest man of wisdom that ever lived in the planet. और महान बुद्धिजीवी व्यक्ति के द्वारा दिए गए हमारे जो हमने पाठों को पढ़ा था
उसके द्वारा हम अध्यायों के आखिरी पद में आ गए हैं। He जो says, मेरा तीसरा बिंदु now है। is the time to live. और ये कहता है कि अब वो समय है कि हमें जीना है। Verse 14. 14वां पद, For God will bring every deed into judgment क्योंकि परमेश्वर सब कामों को, जो सब गुप्त में की बातें हैं, with every secret thing, चाहे वो भलाई या बुरी हो, whether good or evil. हर वो गुप्त बातें जो भली और बुरी हो, God will bring every deed into judgment. परमेश्वर हर उन चीजों को न्याय में लेकर आएगा। So we are back to where we started this whole journey. इसलिए हमने ये जो यात्रा शुरू करी थी, हम वापस उसी जगह पहुंच गए हैं। The judgment of God. परमेश्वर का न्याय। We hate the word judgment. हमको न्याय शब्द से घृणा होती है। How many of you hate the word judgment? आप में से कितने लोग न्याय शब्द से घृणा करते I हैं? do. I don't like the word आप में से judgment. मुझे ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। But it is in the judgment of God that we find meaning in absolutely everything. लेकिन ये परमेश्वर के न्याय में ही होता है, जहां पर हम परमेश्वर का जो हमारा जो जीवन का अर्थ है उसको पूर्ण रीति से The जानते हैं। judgment of God is not something that we can avoid. परमेश्वर का न्याय एक ऐसी चीज है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। There is an appointment that is already scheduled for you. एक ऐसा समय है, एक ऐसी मुलाकात है जो हमारे लिए नियुक्त कर दी गई है। That appointment will never be rescheduled. और वो एक ऐसी मुलाकात है जिसको दोबारा से बदला नहीं जाएगा। That appointment will never be postponed. वो कभी भी उसको बाद के लिए रखा नहीं The जाएगा। date and the time is set जो समय है और जो तारीख है वो नियुक्त कर दी for गई है you to stand before your Creator कि आपको उस परमेश्वर सृष्टिकर्ता के सामने खड़ा होना and है to give an account for every minute details in your life. और अपने जीवन की उन छोटी छोटी बातों का भी उस परमेश्वर को लेखा देना है। That's what verse 14 says. वही 14वां पद कहता है God will bring every deed into judgment कि परमेश्वर हर कार्यों को न्याय में लेकर with आएगा, every secret thing, सारी उन गुप्त बातों के साथ, whether they are good or evil. चाहे वो अच्छी है या चाहे वो बुरी है। Everything, all of our life falls under the judgment of God. हमारा जीवन सब कुछ परमेश्वर के न्याय के नीचे आता है। You might be wondering, when is that appointment? आप I would सोच- like to know. आप सोचते होंगे, विचित्र महसूस करते होंगे, कब वो नियुक्त दिन है, वो मुलाकात होगी। Many of us who are trying to go to the United States आप में कई लोग जो अमेरिका जाना चाहते who do हैं, not have current visas, जिनके पास अभी हाल फिलहाल में वीजा नहीं है, it's very hard to get an appointment. बहुत ही मुश्किल है कि आपकी मुलाकात वहां हो जाए। You won't get an appointment for a visa interview till the end of 2023 or in the beginning of और 2024. 2023 या 2024 तक भी अगर मुलाकात आप करना चाहते हैं जाकर अमेरिकन एम्बेसी में, तो अभी तारीख मिलना बहुत मुश्किल है। Hebrews chapter 2, 9 verse 27. इब्रानियों की पत्री उसका 9 का This 7, is your appointment. ये आपकी Your appointment date. या आपकी अपॉइंटमेंट की Hebrews मुलाकात की chapter तारीख। 9 verse 27. इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय का 7वां पद, It says, it is appointed for man to die once, ये चीज नियुक्त कर दी गई है कि मनुष्य का एक बार मरना and after that comes और judgment. न्याय का होना नियुक्त है। Wow, that is very, very satisfying. ये बहुत ही संतुष्ट करने वाली चीज है। It is appointed for man to die once, and after that comes judgment. ये निश्चित है कि मनुष्य का एक बार मरना और But- फिर न्याय का होना नियुक्त But है। you might say, I'm a Christian, I'm a follower of Jesus, my judgment already happened 2000 years लेकिन ago. आप बोलेंगे मैं तो एक मसीही हूँ और अनुयायी हूँ, मेरा तो 2000 वर्ष पहले ही न्याय हो चुका है That Jesus died on the cross 2000 years ago and I'm judged forever. कि मेरा न्याय 2000 साल पहले ही हो चुका है। That's true. वो सत्य है। You won't face the judgment of condemnation, आप ऐसा न्याय से होकर नहीं गुजरेंगे जहां आपको श्रापित किया but जाएगा, there are different kinds of judgment. आपका तिरस्कार किया जाएगा, लेकिन अलग अलग प्रकार के न्याय होंगे। How many of you have seen those TV shows where they have lawyers and judge sits on the throne and make verdicts over people's issues? They have people's courts on TV. आप में से कितने लोगों ने ऐसे टीवी में कार्यक्रम देखे हैं जहां पे वकील होते हैं, अदालत होती है और वहां पे न्याय किया जाता है। And there, the judge who sits on the throne makes one person's behavior evil than the other, and the one person's behavior better than the other, and the one is convicted guilty and the other is convicted not guilty. और फिर वो सिंहासन पे बैठा हुआ न्याय जो है,
एक पक्ष को बोलता है कि वो गलत था, दूसरे पक्ष को बोलता है वो ठीक था, और फिर उसको एक को दोषी ठहराया जाता है, दूसरे को दोषी नहीं ठहराया जाता। But in this judgment, लेकिन इस न्याय में it doesn't condemn the person who is lesser, यहाँ पर किसी इंसान को दोषी नहीं ठहराया जाता जो कम है, but it just evaluates your performance and what you have done and grant you rewards accordingly. लेकिन आपके जीवन का मूल्यांकन किया जाता है ये देखने के लिए कि आप कितने ठीक हैं अपने कार्यों के अनुसार। There are two different kinds of judgment. दो अलग-अलग प्रकार के न्याय है। One is a judgment of condemnation, एक न्याय है जिसमें आपको दोषी ठहराया जाता and the है, other one is an evaluation और judgment. एक दूसरा न्याय है जिसमें आपके जीवन का मूल्यांकन किया For जाता है। those who are not following Jesus Christ, जो लोग यीशु का पीछे नहीं कर रहे they हैं, have a condemnation judgment. उनके ऊपर दोष लगाने वाला न्याय होगा। The Bible says they will be condemned to hell, eternity in hell. बाइबल कहती है कि उन पे दोष लगाया जाएगा और नरक तक दोषी ठहराए जाएंगे। But those who are in Christ, लेकिन जो लोग मसीह में हैं, the final judgment will not be a judgment of वो condemnation, अंतिम न्याय जो है वो दोष का या श्रापित होने का नहीं because होगा, Jesus took your condemnation on the cross 2000 years क्योंकि ago. 2000 साल पहले यीशु ने आपके दोष को जो है क्रूस पर ले लिया। But लेकिन as a follower of Jesus, you will be evaluated in the light of God's righteousness and His justice. लेकिन यीशु के पीछे चलने के कारण उसकी धार्मिकता में हमारे जीवन का मूल्यांकन होगा। He will take us through each day and we will give an account for each. वो हमारे हर दिनों को देखेगा और उसके अनुसार हमारा लेखा देगा। If computer system can process the data and analyze and come up with summaries within seconds, अगर कंप्यूटर की चीजें कई चीजें बाहर निकाल कर ला सकती हैं, जो आंकड़े होते हैं या चीजें होती हैं। when I type out the manuscript for my teaching, जब मैंने इसको जो टाइप किया अपने आज सुबह प्रचार करने के I लिए, get a summary of how many words. और फिर मैंने देखा कि कितने शब्द हैं उसमें। The computer has already counted how many words I have typed. कंप्यूटर ने बता दिया कि मैंने कितने शब्दों को टाइप किया था। If this is what computer can do, what can the Almighty God do to bring out every day's affairs of our life, whether it is 90 or 55, it doesn't matter. God knows everything, and everything is transcribed in the hard disk that will be filtered and processed. अगर कंप्यूटर इतना ज्यादा इन चीजों को बता सकता है तो हमारे जीवन के बारे में, चाहे वो 90 है चाहे वो 55 है, वो कितना ज्यादा उन चीजों को प्रकट कर सकता है। Hallelujah. Hallelujah. But I want to be evaluated. Well done, good and faithful लेकिन servant. मैं चाहता हूं कि जब मेरे जीवन का मूल्यांकन हो तो मुझे ये कहा जाए कि अच्छा मेरे अच्छे सेवक, Well done. बहुत अच्छा। And I get, the Bible talks about crown. I don't have time to talk about the crowns. बाइबल जो है वो मुकुटों के बारे में कहती है, मेरे पास मुकुटों के बारे में बताने के लिए भी समय नहीं है। Based on your evaluation, there's going to be a graduation service. आपके जीवन के मूल्यांकन के आधार पर आपके लिए एक अंतिम ग्रेजुएशन का दिन होगा, And there will be crowns. और वहां पर मुकुट होंगे, And there will be jewels put on it for all the wonderful things you did. और उसके ऊपर जेवरात लगे होंगे जो उस मुकुट के ऊपर होगा, उस दिन मिलेगा। How many of you like to get crowns? आप में से कितने लोगों को वो मुकुट In पाना heaven. है स्वर्ग में, In the glorious presence of God. परमेश्वर की महिमा में, उपस्थिति में। You know what I want to do? आपको पता है मैं क्या करना चाहता हूँ? I always dreamed this for many, many years of my life now. मैंने अपने जीवन में कई सालों के लिए ये सपना बना के I रखा है। picture this, I dream this. मैं इस चीज को सोचता हूँ और इस चीज के लिए विचार करता हूँ। I want to get an amazing crown. मैं एक बहुत ही अद्भुत एक मुकुट पाना I चाहता want to हूँ। get a beautiful crown. मैं एक बहुत ही खूबसूरत मुकुट पाना That will चाहता have हूँ so many jewels. जिसमें बहुत से ज्यादा जेवर लगे होंगे। Mama Yolanda, I don't know how many hats you have. मुझे नहीं पता मामा ओलांडा के पास कितने ज्यादा She has महिमा so many है। hats. उनके पास बहुत सी महिमा है। Every picture I see, she has a different hat that matches the color of the clothes she is उनके wearing. पास अलग अलग प्रकार की टोपियां हैं, जिस प्रकार से वो कपड़ा पहनती हैं उस प्रकार की टोपी पहनती हैं। 90 years old, she is one of the most stylish women I have seen. 90 वर्ष की उम्र में इतनी ज्यादा वो रुचिकर हैं, वो देखकर मुझे ताजुब होता है। Doesn't matter
how many hats we have on this earth. ये मतलब नहीं रखता कि हमारे पास कितनी टोपियां हैं, But when we get there, लेकिन जब हम वहां जाएंगे, if we have amazing crowns, अगर हमारे पास अद्भुत वो मुकुट you know होंगे, what I want to do? आपको पता है मैं क्या What will करूंगा? you do? You know what I want to do? आपको पता है मैं क्या करना I चाहता want to हूँ? go to Jesus. मैं यीशु के पास जाना चाहता हूँ। I want to kneel at his presence. मैं घुटनों में होना चाहता हूँ उसके I will पास। take my crown. मैं अपना मुकुट निकालूंगा I will put it at the feet of Jesus. और मैं उसको यीशु के चरणों में रख दूंगा I will say, here it is और मैं कहूंगा यहाँ पर है for यीशु, saving me, a sinner, मुझ पापी को बचाने के लिए and giving me this life, और मुझको ये जीवन देने के लिए, for bringing me to this place. मुझको इस जगह तक पहुंचाने I के लिए, want to offer something to my Jesus. मुझको अपने परमेश्वर को कुछ चढ़ाना है। When you go to see important people, जब आप कुछ मुख्य लोगों को मिलने you जाते never हैं, go empty hand. आप कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं And you cannot do shopping in heaven to buy something for Jesus. और आप जो है स्वर्ग में जाके शॉपिंग नहीं कर सकते हैं There सामान। is only something that you can get from heaven that you can give to Jesus. आप सिर्फ कोई ऐसी चीज है जो स्वर्ग से ही पा सकते हैं और उस यीशु को दे सकते हैं। How many of you want to buy a gift for Jesus? आप में से कितने लोग यीशु के लिए उपहार खरीदना चाहते Now is the time. हैं? ये वो समय है, Now is the time. अभी वो समय है When you help the poor, जब आप गरीबों की मदद करते you हैं, feed the hungry, जब आप भूखों को खिलाते you हैं, share Jesus with others, जब आप यीशु को दूसरों से बांटते you हैं, lead others to faith in जब आप Jesus, दूसरों को विश्वास में अगुवाई करते हैं, you live for this word जब and the आप- advance of the gospel, जब आप इस वचन के लिए जीते हैं और इसकी बढ़ोतरी के लिए you जीते हैं, fulfill the command of जब आप Jesus. परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, For every glass of water that you have given to the least of these, हर उन गिलास उस पानी का प्याला जो आपने उन लोगों को दिया जो Ping, बिल्कुल शून्य है, ping, ping, new jewels, नए नए वो new jewels are added every day. नए नए जेवरात आपके उस मुकुट में लग रहे हैं। How many of you will say, Lord, आप में से कितने लोग बोलेंगे यीशु help me, परमेश्वर मेरी मदद help करे, me to buy you many gifts. प्रभु मेरी मदद करे कि मैं आपके लिए बहुत से उपहार Help me खरीद to be सकूं, faithful, मेरी मदद करे कि मैं विश्वास faithful योग्य रहूं, steward of everything that you have given मैं एक me, विश्वास योग्य भंडारी बनूं उन सब चीजों के लिए जो तूने मुझे दिया है, so that I can bring you something beautiful ताकि- in your presence. ताकि मैं तेरी उपस्थिति में कुछ खूबसूरत ला सकूं। Hallelujah. The acts of obedience that you do each day, प्रतिदिन जो आप वो कार्य करते हैं परमेश्वर की आज्ञाकारी के out प्रति, of love and reverence for Jesus, परमेश्वर से प्रेम और आदर के भाव में, this world has no clue about. ये दुनिया उस चीज को समझ ही नहीं सकती, This world has no idea उसके बारे में इस संसार को कोई अंदाजा ही नहीं है what you are all about कि आप हैं कौन and why you're doing all this. और आप ये सब क्यों कर रहे हैं। But you know, आप जानते हैं, you do what you do. आप जो करते हैं वो आप करते हैं, You carry the cross. आप क्रूस को उठाते हैं, You're following him आप उसका पीछा कर रहे हैं because you have Jesus. क्योंकि आपके पास यीशु है, You love Jesus. आप यीशु से प्रेम करते हैं, He's in your heart. यीशु वो आपके दिल में है, You live for him. आप उसके लिए जीते हैं। This life is worth living. ये जीवन उत्तम धन्य है जीने के लिए,